दो भी सर आज Pleasant morning. You are not present over here. My name is Ayan Sheikh. I am from BA Career. It is a wonderful opportunity for me to host this program. First of all, I would like to welcome all our beloved parents on the behalf of Human Education Foundation. Please give a round of applause for our parents. Let's begin this program with a beautiful welcome speech by Mr. Shahid. I would like to call on the dais Mr. Shahid to welcome you all. Please, Shahid. Education is the most powerful weapon which you can use to change this world. I am Mohammad Shahid from BA second year from Kolar district. Good morning everyone present over here. It is my great pleasure to welcome each and every one of you to the parents meeting at Rahman Education Foundation here today. Your presence here today is highly valued and we really appreciate the time and effort you have taken to join us today. Your involvement and support play a crucial role in shaping your child's future. I would like to take opportunity to express my sincere gratitude to the Dean of Rahman Education Foundation, Mr. Yusuf Sir, for his unwavering support and leadership which continually drives the leadership of all the students in the institution forward. I would also like to extend a special thanks to the top UPSC mentors of our academy, Mr. Yunus sir, who guides us with general studies, and Mr. Harun sir, who guides us with CSAT. And last but not the least, I would also like to thank the non-teaching staff of REF, our warden sir, Mr. Kumar Naik, and accountant Matin sir. Once again, thank you all for being here. Your involvement and encouragement inspire our students to strive forward in their future. Let us look forward and wonderful, insightful session together. Today we have an engaging program here, planned to highlight the talents and hard work of our students. A key feature of today's event will be a debate where our students will be participating and providing our students with the opportunity to express their ideas, enhance their public speaking and engage in meaningful and healthy discussion. Thank you everyone. Thank you, Shahid, for your warm welcome. Guidance and mentorship are important for every competitive exam. So I would like to call Mr. Yunus sir for his guidance and mentorship. Please, Yunus sir. Assalamu alaikum everyone. So we have parents from Janpatna, मुस्तफ़ा के डैड। आप कहाँ से? टिप्पू। मोहसिन के अब्बा हैं आप? टिप्पू से। सुफियान के। आप जो है बीजापुर, मस्कोटे से। अफनान पाशा, मोहम्मद अली गुलबर्गा, एंड यू नो फुरकान Rashid. शाहिद के अब्बा है
उमर यहाँ बल्लारी से आएंगे तलहा शिवमोगा से हाँ नहीं बल्लारी, तो बल्लारी से आप तीनों हैं। सही है। तो आप लोग जो है हमारी एकेडमी में अपने बच्चों को छोड़े यहाँ पे है नी पढ़ने के लिए और आगे चल को IAS IPS बनने के लिए, और बाकी उसके अलावा भी जो है आगे चल को दूसरे फील्ड्स के अंदर भी लीडरशिप रोल हासिल करने का सब यहाँ पे छोड़ पाएंगे, राइट। तो हमारे पास दूसरी अकेडमियों की तरह यहाँ पे कोई पैसे नहीं देते, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और उसके अलावा भी जो है इतने सारे फैसिलिटीज़ देते हैं बच्चों को यहाँ पे कि उनको किसी चीज़ की भी कमी महसूस होने नहीं देते। और उनको जो है लाइब्रेरी है, AC लाइब्रेरी, और अकोमोडेशन है, और अच्छा माशाल्लाह फूड है। दिल्ली में मैं 3 इंस्टीट्यूट में रहा हूँ, और यहाँ पे हमारे बच्चे दिल्ली से भी आए हैं। अपना वेरी दफा सॉरी अमान हाँ, कैसा है खाना है अभी इन दिल्ली? हाँ उर्दू बाकी कहीं भी खाना हो सकता है, सबसे बेस्ट कहीं पे 3 टाइम बहुत न्यूट्रिशियस खाना मिलता है, और 3 टाइम हर दिन अलग अलग खाना मिलता है, बहुत ज़्यादा सहूलियत है सर। खाने का कोई कंप्लेंट नहीं है किसी का, और तो बच्चे कुछ भी अगर चेंज करना बोले तो हम लोग इमीडिएटली चेंज कर देते खाने को। तेल ज़्यादा नहीं देते, और रोज़ सुबह में दूध अंडा मिलता बच्चों को, और नाश्ता रोज़ अलग अलग मिलता, खाना भी रोज़ जो है अलग अलग मिलता, रोटी मिलती है कि नहीं। तो इट्स गुड राइट सिर्फ। और हमारे पास और भी बच्चे हैं, सैनिक स्कूल से बड़े से भी बच्चे हैं। प्रवीण जो तुम सैनिक स्कूल में थे, यू वर इन सैनिक स्कूल राइट, तो हाउ वाज द फूड हियर? गुड। तो बीजापुर सैनिक स्कूल में थे, ओके सिर्फ। सो फूड वाइज देयर इज नो कंप्लेंट हियर, सबसे अच्छा खाना मिलता है बच्चों को। और उसके अलावा जो है ओपन एरिया बहुत सारा है हमारे पास। आजकल बेंगलुरु के अंदर वहाँ यहाँ कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे ओपन एरिया नहीं रहता। हमारे पास बच्चों का अक्सर क्रिकेट फील्ड है, वॉलीबॉल है, उसके बाद जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पूछते हैं वो ला के देते हैं, है कि नहीं। और बाकी दूसरी तरफ नहीं रहता ऐसा। शाहीन में है, शाहीन में जो है बड़ा फील्ड वगैरह है, 1,25,000 70,000 रुपये फीस लेते हो, है नहीं। तो वो लेके खाना वहाँ का कंप्लेन हमेशा रहता है खाना। बहुत सारे बच्चे छोड़ के आ जाते हैं वहाँ से, बिकॉज खाना सही नहीं है बोलो, क्योंकि हमारे पास कोई भी अभी तक छोड़ को नहीं गया खाना सही नहीं बोलो, है कि नहीं। और प्लस ओपन फील्ड है। उसके अलावा यहाँ ये ओपन फील्ड के अलावा जब भी उनको क्रिकेट टूर्नामेंट्स खेलना रहता है तो गौसिया कॉलेज के ग्राउंड में जो है परमिशन लेकर वहाँ पे उनको क्रिकेट खिलाते हैं। तो उसके अलावा ये सारी चीज़ें उनको स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे जो है देते हैं उनको। प्लस जो है इक्विपमेंट्स, क्रिकेट बैट, वो बैडमिंटन, वो ये जो बोलते हैं सब दे देते हैं। और उसके अलावा हॉस्पिटल वगैरह लेके जाना रहता तो वो लेके जाते हैं। और बच्चों को यहाँ तक हेल्प करे कि उनको अगर कॉलेज में जाने के लिए पैसे बनाते तो वो भी दिए, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें एकेडमी की तरफ से दे रहे हैं। और आजकल के ज़माने में तुमने मालूम है कि कौन भी जो है 10 रुपये स्पेंड नहीं करते हैं क्या? अपने अलावा किसी के ऊपर 10 रुपये भी स्पेंड करना बोले तो ऊपर नीचे देखते हैं। तो यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं। अब पेरेंट्स की मीटिंग बुलाने का मकसद क्या है, ये तो तुम्हें पहले से मालूम है, यानी ये सारी चीज़ें तुम लोग पहले से मालूम है। तुम ला के छोड़े तो अपने बच्चों को यहाँ पे पेरेंट्स की मीटिंग बुलाने का सबसे बड़ा मकसद ये रहता है। बहुत सारे पेरेंट्स आए नहीं, बट जो नहीं है उनको भी बुलाते, बिकॉज अभी जो है ये सारी चीज़ें स्ट्रिक्टली होने वाली हैं। पेरेंट्स आना, पेरेंट्स आके पेरेंट्स जो है उस चीज़ का इक्वल हिस्सा बनना, पढ़ाई का। पेरेंट्स नहीं आ रहे, अगर एक्सक्यूजेस दिए कि हमारा वो है, हमारा ये है, नहीं है बोले तो नेक्स्ट टाइम और एक बार बुलाते हो। जो पेरेंट्स अभी नहीं है उनको फिर बुलाते, नेक्स्ट मंथ फिर बुलाते, फिर भी नहीं है बोले तो फिर क्या कर सकते हैं, आपके बच्चे को लेके जाओ बोलते हैं, है कि नहीं। हमारे पास 10 बच्चे रहते, वो 10 बच्चे अच्छे रहते, पढ़ाई करने वाले रहते। ये तो क्या हो जा रहा है, ये इंस्टीट्यूट धर्मशाला बनते हुए जा रहे। बच्चे आ रहे हैं खाने, हाँ इंटरेस्ट नहीं है, वो दूसरे फालतू बच्चों की वजह से जो अच्छे बच्चे हैं वो भी बिगड़ रहे हैं। अब वो नहीं होना अकेडमी में, और फालतू बच्चे अकेडमी में नहीं रहना, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट है नहीं। ये इंस्टीट्यूट जो है बेचारे वो एक डॉक्टर रहमान सर हैं, उन्होंने अपने पैसे कमाए से जो है सोसाइटी के ऊपर खर्च करना बोल के स्पेंड कर रहे हैं।
और ये पैसे अगर सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे और गंदी आदतों के अंदर पढ़ रहे हैं, है नहीं, झूठ बोल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं और जो है पढ़ाई नहीं कर रहे, तो इससे क्या होता है, अकेडमी का नाम खराब होता। और अकेडमी का नाम खराब हुआ बोले तो जो अच्छे बच्चे एक्चुअल में आना चाहते हैं वो बच्चे नहीं आते। बहुत सारे पेरेंट्स नहीं भेजते अपने बच्चों को, बिकॉज बच्चा जाकर बिगड़ गया बोले तो क्या करना है कि नहीं। तो अब इसके अंदर हम लोग जितना कर सकते करते हैं। उन्होंने रहमान सर को वहां रह के उन्होंने पूरा प्रिस्क्रिप्शन भेजे, कुछ बच्चे स्मोक करते हैं यहाँ पे और स्मोक नहीं करना बोल तो क्या करें, वहां से प्रिस्क्रिप्शन भेजे कि ये एटलीस्ट उनको गोलियां दो बच्चों को, ये गोलियां दे तो क्या होता, अंदर से स्मोक नहीं करना बोल के होता, तो नहीं करते बच्चे, है कि नहीं। यहाँ तक मुझे कंप्लेंट्स मिले, कुछ लोग मुझे मैसेज करके बोले सर वहाँ के बच्चे कुछ ऐसे हैं जो पैसे नहीं बोल को बीड़ी भी स्मोक कर रहे सर, वहाँ पे कुछ लोग बोल के बोले। अब वो बहुत स्ट्रिक्ट चीज है ये, ऐसे बच्चे हमारे पास नहीं रहे तो बेटर है। और ये इतना स्ट्रिक्टली बोलना पड़ रहा है बिकॉज ये हमारी भी जिम्मेदारी है और आपकी भी जिम्मेदारी है कि नहीं। हम सब मिलके करेंगे तो बच्चे हमारे जो है सही रास्ते पे रहते, पढ़ाई करते। तो पहली चीज जो बोलना है मुझे वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे हर हफ्ता सीसैट का टेस्ट होता है और हर 20 दिन में जीएस का टेस्ट होता है, एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। यूजुअली 20 दिन में हो रहा था, ये बीएससी एग्जाम की वजह से थोड़ा पोस्टपोन हो गया। फिर जो है उनका इंटरनल एग्जाम के बीच में जब टाइम ज़्यादा रहता, 3 दिन से ज़्यादा जब टेस्ट रखा हो, तो अब उसके अंदर कुछ बच्चे कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आबिद बोल के एक बच्चा है, कौन है आबिद का है, आबिद सरूर की नहीं है क्या, हाँ, वेर इज इट कॉल आबिद, he has been consistently performing well। और उसके अलावा जो है नईम है, नईम भी बहुत अच्छा बच्चा है, उन्हें भी परफॉर्म कर रहे हैं। उमर है, उमर इज ऑल्सो परफॉर्मिंग वेल। और मोहसिन है, मोहसिन ये भी बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद सैफुल्ला है, सैफुल्ला लेकिन कंसिस्टेंटली ये बच्चा भी अच्छा परफॉर्म करता है। और कौन, तलहा है, तलहा जो है पहले 6-7 नंबर में है, ठीक है। और अली पहले परफॉर्म कर रहा था बट परफॉर्मेंस उसका कम हो रहा है। पहले टेस्ट के अंदर अली 3रे नंबर पे था, फिर 4थे नंबर पे आया, फिर 7वें नंबर पे गया, फिर 8वें नंबर पे गया, परफॉर्मेंस कम होता जा रहा। अली जरा जागो, आपके बच्चे के बारे में बात हो रही है। तो ये बोलने का मकसद ये है कि जब यहाँ पे पेरेंट्स आपको आपके बच्चों के मार्क्स भेजते हैं तो उसको सीरियसली ले लो। आप सीरियसली लेके आप जो है बच्चे से बात करें कि मार्क्स कम क्यों आए। जैसे अली के मार्क्स में अभी बोल रहा था कि पहले टेस्ट में 3रे नंबर पे था, दूसरे टेस्ट में 4थे, अभी 5वें, 6वें, अब 7वें नंबर पे आया। तो मार्क्स कंसिस्टेंटली क्यों कम हुए, ये आप लोगों का सवाल करना और हमसे भी सवाल करना कि मेरे बच्चे के मार्क्स हमारे सर कई को आ रहे हैं, बोलो जरा पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। नहीं पढ़ रहा बोले तो क्यों नहीं पढ़ रहा, क्योंकि ये जो उम्र है बच्चों की, आपको मालूम है बहुत इम्पोर्टेंट उम्र है। और IAS IPS बनना उतना आसान काम भी नहीं है, बहुत मेहनत लगती है उसकी, बहुत कड़ी मेहनत लगती है। और पेरेंट्स का अगर साथ नहीं रहा बोले तो वो मेहनत काम नहीं आता। हमारी मेहनत सिर्फ क्या एक हद तक रहती है, वहाँ से पेरेंट्स का प्रेशर आना, पेरेंट्स का प्रेशर नहीं आया बोले तो फिर बच्चे क्या हो जाता है, हमारे अब्बा पूछ रहे नहीं, हमारे अम्मी नहीं पूछ रहे तो ठीक है बोल के छोड़ देते हैं, है कि नहीं। आप लोग उनको यहाँ पे दूर रखते हैं, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है अपना बच्चा अपने पास रहना बोलते सब लोग सोचते हैं, है कि नहीं। आप भी रखे, है नहीं, और बेचारे उनकी अम्मी का कुछ दिन पहले चिंता हुआ था, उसके बाद भी आप लाके अपने बच्चों को यहाँ पे रखे, बहुत सारा बच्चा आपका उम्र, है नहीं। तो सब लोग अपने सेक्रीफाइस से लाके रखते हैं अपने बच्चों को, बट उसे निगरानी करना, निगरानी नहीं करें, बच्चा बिगड़ रहा बोले तो फिर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इंस्टीट्यूट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, है कि नहीं। और ये बच्चे बिगड़ना नहीं, ये हमारे आगे चल के हमारे देश के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे जाने वाले बच्चे हैं, और ऐसे बच्चे अभी उम्र उनकी ऐसी स्थिति की थोड़ा बिगड़ने के चांसेस रहते, तो हम लोग दोनों मिलके उस पर वर्क करना रहता है। कुछ बच्चों के मार्क्स कंसिस्टेंटली कम है, उनके बच्चों के पेरेंट्स से इंडिविजुअली बात करता हूँ मैं,
और जो बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं और उनके पेरेंट्स नहीं है उनको बुलाना पड़ता है। किनके पेरेंट्स नहीं है? अफनान के पेरेंट्स आ गए नहीं? अफनान के हैं, शाशा के नहीं है, अफान है, अफान तुम्हारे नहीं है। नेक्स्ट वीक बुलाना, या तो तुम घर जाना। दिस इज नॉट हैपनिंग। ये इंस्टीट्यूट में अगर तुम अपने पेरेंट्स को नहीं बुला रहे बोले तो अब पेरेंट्स का हक बनता है कि नहीं अपने बच्चे के लिए वक्त निकाल के आना। अब उसका भी वक्त नहीं बोले तो फिर यहाँ पे क्या कर रहे है कि नहीं है? लाना पेरेंट्स को, तुम इंडिविजुअली बुलाना, नेक्स्ट वीक आना होना। उसके बाद ताहिर योर पेरेंट्स शुड कम, इमरान के आ गए, और अल्लाह रखा मेरे से तुम्हारे पेरेंट्स आएंगे नहीं, कहीं नहीं आता। नेक्स्ट वीक दे शुड कम, ठीक है। शाहिद के आ गए और मुस्तफ़ा के आए हैं। हारिस, वेयर इज हारिस? इज नॉट हियर। हारिस नहीं है। सैफुल्लाह तुम्हारे पास, फसी के भी नहीं है, कुछ स्ट्राइक होगा मुझे। तो कुछ बच्चों के मार्क्स जो है एक टेस्ट में नहीं, कंसिस्टेंटली मेरे पास 6 टेस्ट के मार्क्स हैं। कंसिस्टेंटली बोले तो लगातार अगर कम आ रहे मार्क्स तो बच्चा या तो पढ़ रहा नहीं या तो फिर उसे कुछ तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है नहीं। एकेडमी में एक लेवल तक ही रख सकते बच्चों को। अब हमें भी एक टाइम देना सोच रहे। रहमान सर क्या बोले तो जो बच्चे उनके मार्क्स नहीं आ रहे, 2 चीजें हैं। अगर कौन भी बच्चा स्मोक कर रहा और एकेडमी में करन दे, बाहर करन दे, पकड़ा गया तो उनको रहमान सर बोले पेरेंट्स मीटिंग में बोल दो आप ये इमीडिएट रस्टिकेशन, उसे दूसरा ऑप्शन नहीं मिलता। और ये मैं सच बोल रहा हूँ आज। उन्होंने बोले रहमान सर मैं खुद साइन करके दे देता हूँ अगर कोई बच्चा स्मोक करता हुआ, गुटखा खाता हुआ पकड़ा गया। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये एक ही इंस्टीट्यूट है क्या, हमें दूसरी तरफ जाकर रखने ले, भारी क्या है ये हो, ये बच्चा तो बिगड़ रहा है। यहाँ रहो कहीं भी रहो, बच्चा बिगड़ रहा बोले तो बिगड़ रहा। और एक दूसरी चीज मैं बार बार बोलते रहता हूँ यहाँ पे, जब अल्लाह ताला कोई नेमत दिया उसका अगर हम सही कदर नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला जो है दूसरी नेमत देता भी नहीं और है सभी छीन लेता। और ये नेमत ही से कि नहीं, एक जगह पे जाके पढ़ाई करना इससे नेमत, अल्लाह की नेमत है। अब उसका सही इस्तेमाल हम लोग करना, सब लोग करना, ऑनेस्ट रहना। और इसलिए जो है क्या करना, स्मोक नहीं करना। और करे बोले पकड़े गए, और ये बहुत स्ट्रिक्ट है क्योंकि ये बात जो है बाहर तक पहुंच रही और बाहर के बच्चे नहीं आए। तो जो बच्चा पकड़ा गया तो उसे इमीडिएट रस्टिकेशन करते हैं। मैं पेरेंट्स के सामने बोलते हुए, उन्हें एस्पिरेंट रहते हैं, उन्हें बीए करने थे, बीयू करने थे। नहीं करना मतलब नहीं करना, वो शौक ही के वास्ते स्टार्ट करे रहते हैं, वो थोड़ा मूवीज देखो स्टार्ट करे रहते हैं, वो उम्र ऐसे रहती, सब लोग नहीं स्टार्ट करते बस। तो वो एक बहुत स्ट्रिक्ट चीज है। और दूसरी चीज क्या है, मार्क्स। मतीन तुम ना हर हफ्ता सीसाइड के मार्क्स और हर 20 दिन के बाद जीएस के मार्क्स भेजते हैं। तो तुम्हें क्या करना, वो मार्क्स को देखना, देख को अपने बच्चे से बात करना, अपने बच्चे से बात करके पूछना। अगर आप नहीं पूछे समझो तो वो बच्चे के अंदर सीरियसनेस नहीं आता, उसे लगता हमारे अब्बा पूछते नहीं। और यहाँ पे कुछ बच्चे 3-3 साल खत्म करके चले गए और आदमी ने कहा है बोले तो काम ही नहीं है, ना वो कर रहे ना ये कर रहे, वो फालतू कुछ चीजें कर लेके फिर रहे। वैसा बच्चा हो जाता आपका भी अगर आप पूछ रहे नहीं। पूछना, बच्चे पे नहीं छोड़ना, बच्चे बहाने देते वो ये बोल के, तुम्हें वो सब बहाने नहीं सुनना। दूसरा बच्चा अगर स्कोर कर रहा बोले तो तू भी करना। सेम टेस्ट में तेरी क्लास का बच्चा अगर 200 में से 160 ला रहा और तुझे 100 भी नहीं आ रहे बोले तो क्यों नहीं आ रहे, है कि नहीं? ये सवाल करना। और ये यूपीएससी की कोचिंग अगर आप बाहर लिए, हमारे बच्चे ने केपीएससी का एग्जाम लिखवा है, बाहर केपीएससी कोचिंग की फीस कितना है, 70,000 80,000 है कि नहीं है, मिनिमम कोचिंग की फीस है। तो यहाँ पे सब अल्लाह के फजल से सब मिल रहा, मेहनत कर रहे बोले तो आप जो है साथ देना। और साथ देके क्या करना, आपके बच्चों के टेस्ट के मार्क्स नहीं, एक्चुअली ऐसा होना कि 20 दिन के बाद तुम्हारे पास अगर टेस्ट के मार्क्स नहीं आए तो तुम्हें फोन करके पूछना। क्या फोन करना तुम्हें, 20 दिन हो गए मार्क्स कहीं नहीं आए, टेस्ट कहीं नहीं हुआ सर। तो हम ना लगता है कि भाई पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तुम्हें पूछे नहीं, उन्हें बच्चा आ रहा जा रहा और टेस्ट के मार्क्स तुम्हें पूछ रहे नहीं बोले तो इसका फायदा नहीं होता, है कि नहीं? और डीसी बोले तो अब तुम्हें फॉर एग्जाम्पल गुलबर्गा से है, फौजिया तरह मैडम डीसी है हमारे, पूरा डिस्ट्रिक्ट उनके हाथ में है, किसी भी बुलाए बोले तो ऐसा उनको आना होना है कि नहीं? तनवीर आसिफ भी तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट के हैं,
इधर के हाँ इधर नहीं तनवीर असद गुलबर्गा के छे तो मंड्या में जिला पंचायत सीईओ है उन्होंने ठीक है शेख तनवीर असद तो अब पूरा कन्नड़ा साहित्य सम्मेलन के बीच में उनको जो है प्राइज दिए पूरा सबके सामने पूरा लाखों लोगों के सामने उनको ये बने IAS ऑफिसर तुम्हारा भी बेटा वैसा बनना आगे चल को बोले तो मेहनत लगती कि नहीं बड़ी मेहनत लगती और मेहनत करना और मेहनत के साथ साथ तुम्हारे पेरेंट्स का साथ रहना तो ये दूसरी चीज पहली चीज स्मोकिंग का मैं बोल दिया स्मोकिंग और गुटखा ये दोनों चीजें खाते हुए कभी पकड़ा गया तो वार्निंग नहीं देते उसे निकाल देते हैं मैं पहली बार बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं बट बच्चा बाहर जाकर बोलने के बावजूद भी कर रहा बोले तो फिर पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं आ रहा बोल तो होना लगता ठीक है और दूसरी बात टेस्ट के मार्क्स आप कंटिन्यूसली चेक करना प्लस टेस्ट के मार्क्स अगर नहीं आए बोले तो तुम्हें खुद फोन करके पूछना यूसुफ सर को कि सर टेस्ट कहीं को नहीं हुआ 20 दिन के बाद टेस्ट होने वाला था कहीं को नहीं कंडक्ट करे सर टेस्ट को मुझे पूछना यूसुफ सर को पूछना ठीक है तब लगता है कि पेरेंट्स साथ दे रहे ये दो चीजें हो गई और तीसरी चीज और बहुत जरूरी चीज अब अकेडमी में छुट्टियां देते हैं यहाँ ठीक है अब छुट्टियां देने के बाद बच्चे घर को गए अब वो एक वक्त दे रहे थे 10 दिन छुट्टी है अब 10 दिन छुट्टी बोले तो 10 दिन के बाद बच्चा आना कि नहीं आना अब समझो 7 बच्चे आ गए 10 बच्चे नहीं आए तो क्लास ले सकते हैं क्या तो वो 10 बच्चों की वजह से या फिर 3-4 बच्चों की वजह से पूरे बच्चों की क्लास नहीं होते और अलग अलग बहाने बोलते थे जाने के बाद वो हो गया सिर दुख रहा वो हो रहा है ये हो रहा है ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा आजकल बस्सा खाली रहते बस्सा में आ सकते आने वाले है क्या नहीं अब ये बहाने से क्या होता है किसका नुकसान होता बच्चे का नुकसान होता तुम्हारा तो हम ये डिसाइड करें कि आपसे छुट्टी में कोई बच्चा गया और ये भी स्ट्रिक्टली बोल रहे थे ये रहमान सर बोले सो है स्ट्रिक्टली कोई बच्चा गया और उन्हें बच्चा अगर टाइम पे वापस नहीं आया तो उसे रेस्ट्रिकेट करो बोले क्योंकि ये एक बार नहीं है कंटिन्यूसली हो रहा है हर बार ये इशू हो रहा है कि बच्चे जाते हैं मगर वापस नहीं आते टाइम पे नहीं आ रहे बच्चे बहुत सारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं छुट्टी पे वापस ही नहीं आते बच्चे और वो बच्चा कितना भी होशियार रहते टैलेंटेड रहते बिकॉज अगर देखो बाअदब बानसीब बेअदब बदनसीब और उसकी वजह से पूरे एकेडमी का अगर डेकोरम खराब हो रहा तो फिर दैट्स नॉट गुड मानते कि नहीं आप ये बात है कि नहीं अगर एकेडमी से बच्चा कोई छुट्टी पे गया तो सही वक्त पे आ जाना है कि नहीं और छुट्टी पे नहीं आ रहा समझो सही वक्त पे तो फिर वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेके रेस्ट्रिकेट करते हैं एंड दैट इज फॉर श्योर मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये सब चीजें क्योंकि रहमान से फोन करे तभी उन्होंने बोल रहे थे ये सारी चीजें बताओ बच्चों को क्योंकि इसकी वजह से डिसिप्लिन खराब हो रहा है अकेडमी में ठीक है तो प्लीज आप अपने बच्चों को जो है इमीडिएटली छुट्टी खत्म होने के इनफैक्ट ऐसे रहना हमारे अब्बा कैसे थे बोले तो मैं भी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था छुट्टी कल खत्म हो रही बोले तो आज ही क्लास हमारे पास छोड़ देते थे मैं पहला इंसान होता था वहां पे आने वाला है कि नहीं ऑनेस्टी क्या रहना ऑनेस्टी और उन्होंने मैं बहाने बोलता था मैं बहुत बहाने बोलता था ऐसा ऐसा रोने का क्या हमारे अम्मी के पास जाता था मैं उन्होंने अब्बा को बोलते बट हमारे अब्बा बोलते थे नहीं जाना तो वो पेरेंट्स की तरफ से आना तुम लोग अगर करे तो कल कौन लेने वाले उसका कल तुम्हारा बच्चा IAS बना तो कौन किसको मिलता फल तुम्हें मिलता और सोचो वो वक्त जब तुम्हारे बच्चे का नाम लिस्ट में आता और मीडिया वाले तुम्हारे घर को आते सवाल करने के भाई कैसा करा तू है कि नहीं तो बच्चा क्या बोलता हमारे अम्मा आपको बहुत मेहनत करे मेरा नाम तो नहीं लेता हूँ मुझसे की वजह से हमारे अम्मी आपको बहुत मेहनत करे बहुत सेक्रीफाइस करे बोलते तुम्हारा नाम लेता हूँ अच्छी बात है तुम्हारा लेन देन बट तुम्हें उसके लिए सेक्रीफाइस करना कि नहीं तुम्हें नहीं तुमना भी होना पड़ता मेरा बच्चा और 1-2 दिन हो जाने बोल तुमना भी दिन में आते रहता और जरा तारे खान दे है नहीं मोटा हो जावा है नहीं अम्मा भी बोलती ये करा अभी 2 दिन नहीं अभी चाहे परसों चाहे अभी भेजने की ओर से बट तुम्हें अभी नहीं भेजे तो क्या होता बच्चे को तुम्हें गलत अब वो है नहीं एक किस्सा वो क्या है किस्सा बचपन में एक जो है बच्चा जो है वो अंडा चोरी करने के आता बाजू के घर वालों का है कि नहीं अम्मी जो है उसे क्या बोलती क्या भी बोलती नहीं ठीक है लेबा को बोलती तो फिर उन्होंने दूसरे दिन क्या करता मुर्गी चोरी करने के आता अब उसे नहीं रोकिए बोले तो फर्स्ट दिन ही अंडा नहीं चोरी करना हमारा नहीं बोल के बोले तो उन्हें नेक्स्ट दिन मुर्गी नहीं चोरी करता नहीं बोले तो क्या करता उन्हें आगे चल के चोरी करता कि नहीं तो हमारी जिम्मेदारी है पेरेंट्स की कि हमें बच्चों को क्या करना राइट टाइम पे भेज देना तुम्हें यहाँ मिलने तुम खुद वक्त निकाल के आते हैं नहीं महीने में 2 बार आओ नो इश्यूज जब बच्चे फ्री रहते संडे के दिन आओ बैठो खाना खिलाओ उनको बिरयानी खिलाओ जाओ बस
बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान दो। ये 3 साल परसों रहमान सर तुमने क्या बोले, यही बोले कि नहीं तुम्हारी जिंदगी के, अगर तुम्हारी जिंदगी तुम 100 साल जीने वाले हैं और वो 100 साल के 4 साल तुम्हें सही मेहनत करे तो नेक्स्ट पूरे जितनी भी जिंदगी के तुम्हारे 100 साल जीने वाले हैं वो चैन के गुजरते कि नहीं गुजरते। अगर अभी मेहनत नहीं करे तो जिंदगी में परेशान। मतलब मैं बच्चों को यही बोलते रहता हूँ कि देखो यूपीएससी करने आए बोले तो ढंग से करो, नहीं तुम्हारे मन में अगर बिजनेस करना है बोले तो जाके बिजनेस ढंग से करो, और बिजनेस इतना अच्छे से करो कि दूसरों की मदद करो, उनको पढ़ाओ। ना तुम्हें वो कर रहे हैं ना ये कर रहे हैं, यहाँ भी टाइम पास कर रहे हैं वहां भी बेकार वेस्ट टाइम कर रहे बोले तो देन कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है, तो ये पेरेंट्स की थर्ड जिम्मेदारी क्या है बोले तो वक्त पे बच्चों को भेजना। और ये स्ट्रिक्टली मैं रूल्स इसलिए बता दे रहा हूँ, आज की बात में वो पेरेंट्स आके बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि कहीं को निकाले हमारे बच्चों को बोलते, तो ये बात बिल्कुल नहीं आना। अगर बच्चा लेट आया तो रस्टिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये बात आप जरा गौर फिक्र करो इसके ऊपर, और उसके साथ साथ जो है बच्चों को जल्दी इमीडिएटली भेज देना। छुट्टी आज खत्म हो गई तो कल आ जाना बच्चे यहाँ। ठीक है, शेड्यूल जो है थोड़ा शेयर कीजिए। हाँ, तो शेड्यूल पेरेंट्स के साथ वो शेयर करना, अच्छी बात बोलना। क्योंकि ये लोग जो है चांस लेके हाँ, लोग बोले बच्चे बोले तो मानना पड़ता। हाँ, ग्रुप पे डाल देना नहीं डालेंगे नहीं। नहीं आप बोलो नहीं बोल रहे बोले तो नहीं डालते, नहीं डालते। आता क्या दूसरी बात कभी एक बार आया हाँ, तो वो ग्रुप में झूठ बोलते तुम घर में नहीं। ठीक है, अगर मैं आप जैसा ही पर्सन हाँ कल आने वाले तो आज आप नहीं कर निकाल देना। अच्छा हो जाएगा। नहीं आप है वो फॉलो करते हैं, वो तो है नो डाउट। डिसिप्लिन जी जी जी, डिसिप्लिन डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। पेरेंट्स के ग्रुप में अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है बोले तो तुम्हें ऐसा आती बोल के बैठना नहीं, फोन करना। तुम्हारे पास फोन नंबर से है ना, यूसुफ सर को कॉल करना इमीडिएटली, कॉल करके पूछना कि ये वाला इन्फॉर्मेशन नहीं आया, बच्चों का मिड टर्म एग्जाम है तो छुट्टियां कब तक हैं, है नहीं, और छुट्टियों के अंदर बच्चे आए बोले तो तुम्हें उसे मेहनत कराना वहाँ बैठ के। उन्हें अगर 24/7 टाइम वेस्ट कर रहा बोले तो फिर तो बेकार ही है। उसके बाद एक बार उसे ध्यान हट गया बोले तो क्या कर सकते हैं, है नहीं। अब डिग्री खत्म करके बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, डिग्री खत्म करके वहाँ यहाँ घूमे, कुछ नहीं हुआ, फिर आ रहे, फिर जो है ऑलरेडी उनकी 23-24 साल हो गई, अब क्या करते हैं आगे, फिर यूपीएससी कर रहे, वो भी ढंग से नहीं कर रहे, मतलब एकदम। और ऐसे बच्चे आगे चल तो कॉन्फिडेंस हिल जाता उनका, और आगे चल के कुछ भी नहीं करते और उधर इधर टाइम वेस्ट करते बच्चे। कुछ बच्चे हैं जो बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं माशाल्लाह, और उनको देख के अच्छा लगता है, और उनके लिए अकेडमी चलाना पड़ता बिकॉज वो बच्चे मेहनत करते रहते हैं। और वैसे बच्चे होना हम, और हर बच्चे के अंदर उतना टैलेंट रहता मेहनत करने का, बट क्या रहता पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं रहा, नहीं तो बच्चे क्या करता फ्री हो जाता। तो ये तीसरी चीज जो थी, पहली स्मोकिंग, दूसरा जो है वो मास्क आप देखना, रेगुलरली चेक करना और बात करना, बच्चे से भी बात करना और हमारे से भी बात करना, पूछना बच्चे को मास्क क्यों नहीं आ रहे बोल के। तो हमना भी जरा क्या रहता है, डर रहता पेरेंट्स पूछ रहे बोल के। मैं खुद बोल रहा हूँ पूछो बोल के, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, फोन लगा के पूछो कि मेरे बच्चे के मार्क्स क्यों कम आ रहे सर, कैसा इंप्रूव करना बोल के पूछो। तो ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज वक्त पे बच्चे वापस आना, और ये आपकी जिम्मेदारी है बिकॉज बच्चा आपके पास है बोले तो वापस भेज देना उसे। तो और एक नेक्स्ट चीज जो है उसके अलावा मोबाइल फोन, हमारे एकेडमी में मोबाइल फोन अलाउड नहीं है, तो खाली हफ्ते में 1 दिन देना बोल के है, वो भी दोपहर से लेकर रात तक देना बोल के, हफ्ते में 1 दिन, दैट इज संडे। अब बच्चा मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा नहीं कर रहा वो आप भी थोड़ा चेक करते रहना। बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ जो धोखा देने की कोशिश करते हैं, तो दूसरा मोबाइल रख लेते, वो करते, ये करते, उन्होंने उसको धोखा दे रहे और किसी को नहीं दे रहे, बट आपकी भी जिम्मेदारी बनती। क्या जिम्मेदारी बनती बोले तो आप चेक करना जरा, बच्चे के पास दूसरा मोबाइल है क्या, घर से लेको गया क्या, क्योंकि बच्चे आजकल देखो यूपीएससी और केपीएससी और कोई भी एग्जाम देने के लिए सैक्रिफाइस जरूरी होता है। सही, आप इतने सक्सेसफुल हो गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सक्सेसफुल हो गए, सैक्रिफाइस दिए होंगे ना जिंदगी में, वो नहीं करा ये नहीं करा मगर काम करेंगे बोल के आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे बोल के, है कि नहीं। हर एक लोग सैक्रिफाइस दिए रहते हैं, तो वो बच्चों के अंदर भी वो चीज आना, लाड़ प्यार के चक्कर में उनको बिगाड़े बोले तो उन्होंने आगे चल के सैक्रिफाइस नहीं दे सकते। तो तुम्हें चेक करना कि तुम्हारे बच्चे के पास दूसरा मोबाइल है क्या बोलो, तुम फोन पूछना उनको। और मोबाइल से बहुत सारे बच्चे बिगड़ जा रहे हैं, उसके अंदर जो है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, वो ये,
और उनके अंदर अटेंशन नहीं रहता है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता है, प्लस जो है वो रील्स देखते रहते हैं, उसकी वजह से अटेंशन स्पैन एकदम कम हो जाता है, और प्लस जो है उसके अंदर वो गेम्स वगैरह खेलते रहते हैं, पबजी वगैरह, वो क्या रहता है उसमें कुछ रहता नहीं, उससे अच्छा जाके स्पोर्ट्स खेलो, बाहर क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, वो फालतू चीज़ें हैं वो। और सोशल मीडिया की वजह से यूपीएससी के चक्कर, सोशल मीडिया के चक्कर में यूपीएससी से बहुत सारे भटके से बच्चे हैं, और तुम्हें किसी का भी टॉपर का वीडियो निकाल के देख लो, जो यूपीएससी निकाले नहीं उनका वीडियो देखो तुम, सब लोग ये बोलते हैं कि मैं सोशल मीडिया से दूर था, जब तक मेरा नहीं हुआ सोशल मीडिया से क्या था मैं दूर। सोशल मीडिया बोले तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ये सारी, इससे दूर रहना, और इसके अंदर पढ़े कुछ हासिल नहीं होता, और वक्त गुजर जाता। अब देखो तुम्हारे ये नए बच्चे जो मुस्तफा की वगैरह बैच थी, मोहसिन की, अब आगे तुम ऑलरेडी 1 साल हो गया नहीं खत्म, 1 साल हो गया और 2 साल में इनका एग्जाम हो जाता है, और तलहा की बैच उनका अगले साल एग्जाम है उनका। तो मोबाइल फोन का बहुत ध्यान रखना, आप लोग चेक करना है कि उनके पास दूसरा मोबाइल फोन है क्या, और अगर उसका मोबाइल फोन उन्हें अगर संडे के अलावा कोई और दूसरे दिन यूज करना बोले तो आप लोग पूछना एडमिनिस्ट्रेशन को कि मोबाइल फोन इसके पास कैसा है, उसको कैसा अलाउ करें मोबाइल फोन यूज करने के लिए, संडे नहीं है आज, मालूम पड़ता कि नहीं आपको कौन सा। तो अगर मैं होता, अगर मेरा बच्चा ऐसे एकेडमी में होता तो मैं क्या करता मालूम, मैं एक मैसेज भेज के छोड़ देता, जैसे ही डबल टिक आया मालूम पड़ता मुझे कि इन्हें इंटरनेट यूज करा था, तो मेरा सीधा कॉल सीधा एडमिनिस्ट्रेशन पे जाता कि इन्हें मोबाइल कैसा यूज कर रहा आज, है कि नहीं। और कभी कभी जेन्युइन रीजन रहता, कभी कभी असाइनमेंट लिखने का रहता, कभी कभी कुछ जेन्युइन रीजन रहता जिसकी वजह से बच्चे इस्तेमाल करते हैं, बट तुम्हें बोल रहा हूँ उसे, मैं भी बोलते रहते हैं यहाँ पे। इनफैक्ट मैं तो कभी कभी कुछ बच्चों का मोबाइल लेके क्या करता हूँ, सोशल मीडिया अनइंस्टॉल करता हूँ, उसके अंदर इंस्टाग्राम निकाल देता हूँ, सोशल व्हाट्सएप निकाल देता हूँ, कभी कभी व्हाट्सएप की जरूरत पड़ती, कॉलेज से कोई कम्युनिकेशन आते रहता, उसके अलावा इंस्टाग्राम के स्नैपचैट वगैरह ये सब बेकार चीजें हैं। तो तुम लोग जो है क्या करना, उसके ये सपोर्ट करना, अगर तुम्हें सपोर्ट करे, तुम्हें बच्चे का चेक करे मोबाइल फोन है क्या नहीं बोले तो फिर देन जो है उसका यूज होता है कि नहीं। तो ये चौथी चीज है, और बहुत जरूरी चीज है सारी चीजें। और मोबाइल फोन का भी यही है कि मोबाइल फोन बार बार अगर किसी का पकड़ा जा रहा है तो बोले तो वो बच्चे को भी हम लोग यहाँ पे नहीं रखते, और वो बहुत सीरियस चीज है, ठीक है। हाँ, तो ये चीज है। नेक्स्ट मार्क्स तो इंडिविजुअल Where is Abid? He's not well. Where has he gone? He's not well. Not well. क्या है, थोड़ा ये भी कर दो, डिस्क्राइब कर दो। यहाँ पे टेस्ट वगैरह होते हैं, जैसे जीएस का टेस्ट हुआ, जनरल स्टडीज का टेस्ट हुआ, मैथ्स का टेस्ट हुआ, इंग्लिश का टेस्ट हुआ, तो उसमें कोई बच्चे मतलब टॉप 3 रैंक पे ना अवार्ड मिलता है, उनको इंकरेज करने के लिए कि वो आगे भी अच्छा करेगा। बाकी जो अच्छा नहीं करते उनको भी मोटिवेशन मिले कि हम करेंगे, हमें भी अवार्ड मिलेगा। तो यहाँ पे ये इस बार खड़े रहो। लास्ट टेस्ट में जीएस के 3 बच्चों को किसे मिला फर्स्ट सेकंड प्राइज? इंग्लिश का निकाला बात इसका। फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज फर्स्ट कौन है? आबिद। जीएस के टेस्ट में मिला था आबिद को फर्स्ट रैंक लास्ट टेस्ट। मेडल्स देते हैं उनको, सेकंड टेस्ट बच्चों में तलहा को मिला। उनको मेडल्स मिलते हैं उनको रखने के लिए,
तो आप पूछना तुझे मेडल मिला कि नहीं बोल के, मेडल नहीं मिला बोले तो बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा। और एक बात मैं देखे सो है, जो बच्चे कंसिस्टेंटली अच्छे मार्क्स लेते रहते हैं वो जल्दी यूपीएससी क्लियर करते हैं, और जो टेस्ट में मार्क्स नहीं लेते वो यूपीएससी में कोई करिश्मा नहीं होता, चमत्कार हो गया मैं पास हो गया बोल के नहीं होता। कंसिस्टेंटली यहाँ पे जिसको मेडल मिल रहे उन्होंने भी वही मेडल लेते हैं। तुम देख लो कि एस्पिरेंट्स यहाँ पे जितने मार्क्स आते हैं वहाँ पे कितने आते हैं, उतने जाते है कि नहीं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी रहता। तो यहाँ पे तुम आप लोग क्या करना, बच्चों को पूछना कि टेस्ट हुआ, टेस्ट के स्कोर्स आपके पास आए बोले तो, और मजीद कहाँ है आगे मजीद, हाँ तो ऐसे टाइप के मार्केट में आई विल मैं बोलता हूँ इनको कि वो ये फोटोज भी डालना ग्रुप में, पेरेंट्स के ग्रुप में क्या करना, ये फोटोज भी डालना, देख के आप पूछना अपने बच्चे को कि ये बच्चे को मेडल मिला तुझे कि नहीं मिला। सेकेंड फर्स्ट प्राइज, सेकेंड तलहा, थर्ड जो है उमर, ये बच्चों को मिला था मेडल, अच्छे मार्क्स दिए थे। आप जो है 200 में से 163, तलहा 147, दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, आबिद को 163 मिले हैं और उसको 147, मतलब 20 मार्क्स का डिफरेंस है। और थर्ड जो है 145 उमर, ठीक है गुड। सीसेट में कौन आए थे फर्स्ट सेकंड थर्ड, परसों बेटा दिए ना, खड़े रहो। सैफ फर्स्ट रैंक, गुड। सेकंड शाहिद, थर्ड रैंक नहीं, गुड ओके गुड, ठीक है। फिर मॉर्निंग में इनकी 7 o'clock पे ना बच्चों को सुबह में 5 बजे उठा रहे हैं, बच्चों को कितने बजे उठा रहे हैं यहाँ पे, सुबह में 5 बजे। 5 बजे उठने के बाद उन्होंने नमाज वगैरह पढ़ के एक्सरसाइज करना डेली, ओके। और एक्सरसाइज करने के बाद फिर जो है हम लोग लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करना। सुबह इनकी शेड्यूलिंग ऐसी है कि सुबह 5 बजे को उठना है, 5 से 6 बजे इनको टाइम देते हैं, ये फ्रेश होके ब्रश वगैरह करके देते हैं। फिर इनकी 6 से 7:30 तक सुबह क्लास होती है, और क्लास सुबह मैथ्स की होती है तो मैं लेता हूँ, मॉर्निंग पर रहता हूँ, मुझे क्लास में होती है सुबह 6 to 7 की क्लास है। फिर 7:30 से इनकी एक्सरसाइज होगी, 7:30 से 10 बजे से एक्सरसाइज होगी। फिर उनके बाद उनको हो गया, फिर ब्रेकफास्ट रखेंगे, 8 से 9 बजे में टाइम देकर बनाना है, फिर बनाएंगे आप ब्रेकफास्ट कीजिए, ब्रेकफास्ट करके 9 बजे से तो लाइब्रेरी में बैठ जाना है। अगर कॉलेज करेंगे तो बिल्कुल कॉलेज जाना है, वहाँ से 1 बजे तक, ठीक है। कॉलेज के या लाइब्रेरी में पढ़े 1 बजे तक, फिर 1 से 2 बजे तक इनका लंच टाइम है, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठते हैं तो लंच के बाद थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम देते हैं, तो उससे 3:30 बजे तक। फिर 3:30 से इनका पढ़ने का टाइम हो जाता है 3:30 से 5 बजे तक। फिर 5 से 6:30 बजे तक इनको खेलने का टाइम होता है, ग्राउंड में जाके खेल जाते हैं ना। तो फिर उसके बाद 6:30 के बाद फिर वापस आइए, फिर यहाँ पे पढ़ाई कीजिए 5 बजे तक। फिर 8 से फिर डिनर का टाइम हो जाता है, 8 से 8:30 तक डिनर के हैं, फिर 8:30 से लेकर 10:30 बजे तक पढ़ने का टाइम। तो इनका शेड्यूल बना हुआ है, ठीक है। अभी कोई बच्चे बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, कोई बच्चे है ना उस मतलब जो भी टाइम पढ़ने का है उस टाइम पे ना कुछ बहाना करके, जैसे ना पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो उसी 2 घंटे में ना 10 बार वॉशरूम जाएंगे। कुछ बच्चों को पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो अपने दोस्त के साथ बैठ जाएंगे, फिर वहाँ पे बात करेंगे। तो कुछ बच्चे पढ़ने वाले हैं वो अच्छे से फॉलो करते हैं, जैसे एक्सरसाइज है, सुबह है ना जिनको एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता ना कुछ बच्चे, तो वो क्या करते हैं, बोलते हैं दिन तरह आप या पेट दर्द है ऐसे एक्सरसाइज करें। तो वो बच्चे के अंदर से खुद से आना कि एक्सरसाइज करें तो वो किसके लिए करेगा, मेरे लिए करेगा, खुद के लिए करेगा, खुद से बड़े एक्सरसाइज करेंगे, फिट रहेंगे, तभी तो फिर पढ़ाई करेंगे दिन में बैठे। अगर सुबह एक्सरसाइज सुबह ही आलस दिखा रही है तो फिर दिन भर आलसी का क्या होगा, है ना। मतलब दिन भर ही आलस बन रहेगा, सुबह फिट हो गए तो फिर दिन भर अच्छा चलेगा, फिर दिन भर पढ़ाई होगी। फिर जैसे अभी एक दिन से तो एक रिजल्ट आता नहीं है ना, ये चीज़ें कंटिन्यूस करनी पड़ेगी, 1 साल 2 साल 3 साल तक जाकर रिजल्ट आता है ना। तो वो उसकी शुरुआत नहीं से होती, सुबह अच्छा हो तो फिर दिन अच्छा होगा, फिर आपने एक दिन अच्छा किया तो फिर दूसरा दिन अच्छा करना पड़ेगा, 2 दिन अच्छा किया तो फिर साल महीना अच्छा करना पड़ेगा, महीना अच्छा किया तो साल अच्छा करना पड़ेगा, ऐसे रिजल्ट आएगा, है ना। तो इसी के यहाँ पे डिसिप्लिन फॉलो करते हैं बच्चे। कुछ बच्चे हैं मतलब पैरेंट्स से मिस्टेक नहीं पता नहीं कि पैरेंट करते बच्चे आपके कैसे करते हैं, ठीक है।
के लिए, और इसके लिए खास किताब बनाई गई है। ये खास किताब जो है डॉक्टर साहब अमेरिका में बैठ के वहाँ से यहाँ हाउस होल्डिंग है ना, उनके साथ मिलकर ये बहुत अच्छी जबरदस्त किताब लोग देखने का किताब है। स्टार्टिंग से है ABCD से लेकर आखिरी तक पूरा किताब है। और ये किताब में क्या है, हमें वीकली टेस्ट दो टेस्ट वीकली टेस्ट, और दूसरा भी है क्या वर्कशीट से भी एक्सरसाइज मिलती है। एवरी वीक दे आर राइटिंग 2 एक्सरसाइज। तो इसमें क्या है, इम्प्रूव होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। तो ये आप लोग आप थोड़ा फॉलो करना, आपके बच्चे लिख रही क्या ये लेके आने को। और इसमें इंग्लिश का टेस्ट भी होता है, और हाउस होल्डिंग जो है एवरी थर्सडे इसका भी है। थर्सडे आप लोगों को क्लास लेती बच्चे कहेगा वीडियो सब यूट्यूब में अच्छी क्लास लेती। और एक नए टीचर भी आने वाले हैं, अगर वो हो गया काम करके, अगर वो आ गया तो अच्छा है, उनके साथ होना और हाउस होल्डिंग के साथ। और दूसरा क्या है, वोकैबुलरी मतलब क्या है, न्यूज पेपर में चेक करो तो हर दिन 5 इंग्लिश वर्ड लिखा, हर दिन में 5 इंग्लिश वर्ड, हर दिन वीकली करती है। प्लस इसके भी वोकैबुलरी है, वो वोकैबुलरी से क्या करती है, हमें टेस्ट देती है, हमारा इंग्लिश का टेस्ट देती है, हमें टेस्ट देती है। वो टेस्ट लेके उसके बाद चलता है, यानी 30 वर्ड्स देती है, 30 वर्ड्स की मीनिंग के साथ उसके सेंटेंसेस बनाना है, सेंटेंस बनाना। और चीज़ क्या है इसमें, डॉक्टर साहब को बोले तो वीकली 2 एसेस लिखना है। ये कैसे उन्होंने भेजती है टेस्ट पे, तो बच्चे सब बैठ के क्या करती है, टॉपिक देते हैं, और टॉपिक के ऊपर ये टेस्ट है। फिर क्या है, हफ्ते के दिन एक इंग्लिश फिल्म देखता है, बोले डॉक्टर साहब इंग्लिश फिल्म देखकर उसके बारे में कैसे लिखें, वो एक 2 एसेस लिखें, और वीकली दूसरे एसेस को लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट। और आप लोगों से गुजारिश करते हैं बच्चों, हम लोग हर वक्त बोलते हैं इंग्लिश में बात करो, नहीं सुनते नहीं, साहब रहेगा दिल से बात करते हैं, फिर हटते हैं, फिर उर्दू में बात करते हैं। तो इंग्लिश में बात करने के बाद आप लोग कोशिश करना, उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट होता है। और छुट्टी का तो घंटा वो बहुत जरूरी है, छुट्टी की तरफ से मेरा नाम खराब हो रहा है, सबका नाम खराब हो रहा है, बच्चे जाते वापस नहीं आना। ये बात स्ट्रिक्ट कर दें, डॉक्टर साहब पूरा स्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, 10 बच्चे 10 बस होना जरूरत, 30 बच्चे आना। और ये बार हमें जो लेंगे बहुत अच्छे बच्चे लेंगे, क्यों लेंगे, नहीं तो जरूरत बच्चे की जरूरत की करो। बहुत शुक्रिया। तो ये बात है। और स्मोकिंग का जो मैं बोला था, कुछ बच्चे जो स्मोक करते हैं और उनके पेरेंट्स को उनको एक मौका दे रहे हैं सुधरने का, वो बच्चों को क्या कर रहे हैं, एक मौका दे रहे हैं। अब वो मौका का इस्तेमाल करके मेहमान सर कुछ टैबलेट्स बोले, वो टैबलेट्स जो है वो हार्मलेस है, वो लेने से क्या होता है, वो अंदर से वो अच्छा नहीं लगता स्मोक करना, तो वो लेना, और लेने के बाद ये मौके का इस्तेमाल करके छोड़ देना स्मोक। अगर नहीं छोड़े, और मैं बहुत स्ट्रिक्टली और क्लियरली बोल रहा हूँ, एवरीवन यूसी से लेके एस्पिरेंट तक, अगर कहीं पे भी डायरेक्टली देखे या फिर इनडायरेक्टली कोई हमने बोला, क्योंकि हमारे लिए 2 विटनेस काफी है ना, इस्लाम में यही बोला ना, अगर 2 लोगों की, सच्चे लोगों की गवाही है तो क्या है, जायज है। तो हमारे पास अगर 2 विटनेस हैं, और वो विटनेस का नाम डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है, हमारे पास है ऐसे विटनेस जो रेडी हुए हैं, और तुम्हारे अंदर ही 6 होंगे। अगर वो 2 लोग बोले कि इन्हें आज स्मोक कराया, तो हमारे लिए उतना काफी है, इससे एक लेटर देके घर को भेज देते। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को पूछना तो करता क्या हुआ बोलते। स्मोकिंग नहीं, कुछ बच्चे गुटखा भी चू करते हैं, और गुटखा खाना तो हद से बाहर गंदी चीज है, और ऐसा कर रहे बोले तो तुम अपने बच्चों को पूछना, ठीक है। और मैं बच्चों को भी बोल रहा हूँ डायरेक्टली और स्ट्रिक्टली, एक बार लीनियंसी दिए हैं और उसको सही इस्तेमाल करो। और इट डजंट मैटर तुम कितने शाने हो, कितने हार्ड वर्किंग हो, कितने टैलेंटेड हो, अगर ये कर रहे बोले तो आई विल नॉट अलाउ यू टू डिस्ट्रॉय योर ओन लाइफ, एंड आई विल बी द फर्स्ट वन टू राइट दैट लेटर एंड साइन इट एंड सेंड यू होम। उसके बाद तुम आया से बन जाओ, इट्स ओके, बट ये जो काम कर रहे हो वो स्टॉप करना, ठीक है, बिकॉज उससे कोई हासिल चीज है नहीं, देयर इज नथिंग दैट कम्स आउट ऑफ इट, सीरियसली नथिंग। कोई भी चीज स्मोक करने से किसी का फायदा हो गया आज तक? किसी का मतलब एक का भी जिसका फायदा हो स्मोक करे इसी वजह से? इमेजिन करो, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। कैंसर इज लाइक न्यू एपिडेमिक इन इंडिया, और जाके देखो, इसीलिए रहमान सर बोले कि बच्चों को लेके जाके एक बार दिखाओ विक्टोरिया हॉस्पिटल में कैंसर वार्ड में
कि 30, 32, 35 साल के लोगों को यहाँ थ्रोट कैंसर, यहाँ का कैंसर, तो अच्छा लगता स्मोक करना, वो बहुत स्टाइलिश लगता, ऐसा पकड़ के ठहरे तुम, वो क्या बहुत अमेजिंग। ऐसा नहीं है, आईएएस बन के दिखाओ, वो स्टाइलिश है। आईएएस बन के जाओ, ऐसा गाड़ी लेके गए बोले तो सामने वाला सलाम ठोकना है कि नहीं। आईएएस बन के बोले तो इवन डीवाईएसपी, एसी, किसी तहसीलदार सब तुम्हारे सामने खड़े हो जाते हैं। मैं गया था मेरे दोस्त हारिस के साथ, यहाँ ऐसा हम मैसूर जा रहे थे। उन्होंने अभी क्या भी नहीं है, प्रोफेशनली ऑफिसर बोले तो अभी आईएएस बने थे, अभी पोस्टिंग भी नहीं मिली थी। चंदपटना में तहसीलदार ऑफिस गए, ऐसे एंटर होते ही तहसीलदार उनको बादल जाकर खड़ा हो गया, इन्हों उसकी सीट पे जाके बैठे। ये बोलते हैं एक्चुअल टशन, है कि नहीं। वो हाथ में सिगरेट पकड़ने को टशन क्या हो, वो बेकार गंदी चीज, उससे कुछ हासिल नहीं होता, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता। ऐसा करो जिसकी वजह से तुम्हारे अब्बा अम्मी को भी प्राउड फील होना। तुम गए बोले तो तहसीलदार खड़ा हो गया तुम्हारे साथ, तुम्हारे अब्बा आए बोले तो उनको कैसा फील होता, मेरा बेटा देखो काम पहुंचा। ये अच्छा है कि तुम्हारे अब्बा तुमने वार्ड में मिले आना, कैंसर हो गया बोल के। तुम डिसाइड करो कौन सा अच्छा है। तुम बहुत शाने लोग हो, तुम सब लोग बच्चे यहाँ पे, तो खुद डिसाइड करो। और ये मत सोचो कि यूनुस सर तो ऐसा बोल रहे हैं, ये सब सीरियस मसला होता, और ये होने के बाद पछतावा इज नॉट गुड, और इसलिए हमारे पास नहीं होना। तो तुम जाके बाहर होना, तो तुम मान रहे नहीं हमारी बात, बोले तो बाहर जाके स्मोक करो, गुटखा खाओ, आई डोंट केयर। बट इफ यू आर डूइंग इट हियर, इट नॉट नेसेसरीली भी मैं खुद देखना या फिर हमारे स्टाफ में कोई देखना जरूरी नहीं है। कोई बच्चे अगर विटनेस बोले आके कि करा है बोले तो विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, एंड दैट इज द फाइनल वन। तो पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज सपोर्ट करो आप लोग भी, और आपके बच्चों के लिए कर रहे हैं हम लोग, और ये हमारे पास वो सब चीजें नहीं होना प्लीज। तो ये बोला है, और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई सजेशन देना है, कुछ बोलना है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और इसके बाद इंडिविजुअली बच्चों के कुछ कोर्स हैं जिनके कम आ रहे हैं, यहाँ पे सबके सामने नहीं बोलना चाहता मैं, तो इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, है ना, मार्क्स क्यों कम आ रहे बोल के। और मैं पहले बोल देता हूँ, जिसके मार्क्स कम आ रहे हैं, रहमान सर बोले उनको 2 महीने का टाइम दो, वो 2 महीने के अंदर मार्क्स इंप्रूव अगर नहीं हुए तो वो घर को भेज दो। अब ये हमारी पॉलिसी है, तो आप इसको सपोर्ट करें, ठीक है। तो हाँ ठीक है, तो अगर पूछना है कुछ बात यूसुफ सर के बारे में पूछो। कुछ नहीं, आप किसी को पूछना, बाद में इंडिविजुअली भी पूछ सकते है, नहीं सेपरेट पूछ सकते। तो अभी पहले आप आ जाओ, फिर आप आओ, फिर आप आओ, उसके बाद आप आओ। तो एक एक करके आएंगे, बात करेंगे, खाने से पहले ये कर लेंगे, इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, थोड़ा चीज़ें डिस्कस करने का अंदर ऑफिस में। उसके बाद दोपहर के बाद थोड़ा डिबेट है, खाने के बाद वो डिबेट करके ठीक है, ठीक है, ओके, लास्ट ठीक है।